بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. صرف کے کچھ قواعد ہم نے شروع کیے تھے، تو انہی قواعد کو آج آگے لے کے چلیں گے۔ پچھلے کچھ قواعد جو آپ کو بتائے تھے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی۔ تو آج ہمارے پاس اطہر اور اثاقل کا قاعدہ ہے۔ اطہر اور اثاقل کیا لفظ ہے؟ اطہر اور اثاقل، اس کا قاعدہ جو ہے وہ پڑھیں گے، تو ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ بہت آسان سا ہے، مشکل نہیں ہے، بس آپ کی تھوڑی توجہ درکار ہے۔ اطہر لفظ کیا ہے، پہلے الفاظ سمجھ لیں۔ اطہر اور دوسرا لفظ ہے اثاقل۔ تو یہ قاعدہ کیا ہے؟ باب تفاعل اور تفاعل، یہاں یہ قاعدہ کن ابواب سے متعلق ہے؟ تفاعل اور تفاعل، باب تفاعل اور تفاعل۔ آپ نے ان ابواب کے نام یاد کیے ہوں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے یہ، تفاعل اور تفاعل۔ تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں جب تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے، کہاں پہ آئیں گے؟ تفاعل کے فا کلمے میں، یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں یہ جو حروف ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ 12 حروف ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جائے، تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے، دال آ جائے، زال آ جائے، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ تقریباً ترتیب کے مطابق یہ حروف یہ آ جائے، ان کی جگہ کیا ہے تفاعل اور تفاعل میں؟ فا کلمے کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ اور تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ تفاعل کے تھا کلمے کے مقابلے میں، تو تا تفاعل، یعنی تفاعل کا جو تا کلمہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ، اور تفاعل کا تا کلمہ جو ہے، ان دونوں کو اس حرف سے بدل کے اس میں ادغام کرنا صحیح ہے۔ جیسے تطہر، یہ لفظ کیا ہے؟ تطہر، یہ تظہر لکھا، یہ غلط لکھا، تطہر، تطہر، تفعل کے وزن پہ تطہر۔ یہ میں ذرا لکھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں۔ یہ تطہر، یہ تطہر، یہ تفعل کے وزن پر ہے۔ تطہر تفعل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تفاعل کے فا کلمے کو دیکھنا، یہ فا کلمہ ہے، دیکھیں یہ بالکل اس کے سید میں یہ فا کلمہ ہے، تفاعل باب تفاعل ہے، تو فا کلمے کے مقابلے میں کون سا حرف آ گیا؟ طا آ گیا، یہ 12 حروف میں سے طا آ گیا۔ اب تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ تا میں آئے گی، یہ جو تا ہے اس میں تبدیلی ہم نے کرنی ہے، تفاعل کے تا کلمے کو فا سے بدل دینا ہے، اس حرف کے ساتھ بدل دینا ہے، تو
تا को जब ता से बदल दिया तो ता तहरा बनेगा। क्या बनेगा? ता ता तहरा। ये जरा माउस के जरिए से तरह नहीं लिखा जाता, तो ये बस गुजारा लायक लिखा जाता है। ये ता तहरा हो गया। ठीक है, कर्सर नजर नहीं आता, ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ता तहरा, ठीक है, ता तहरा। ता को तब्दील कर दिया ता के साथ, तो क्या बन गया? ता तहरा। और दूसरा काम क्या करना है? सिर्फ तब्दील नहीं करना, ता का ता में इदगाम करना है। ता का ता में इदगाम करना है और शिरों में हमजा वसली लेके आना है। ता का ता में ये जो ता है, ये इसका इस ता में इदगाम करना है। इदगाम के लिए जरूरी है कि इसको साकिन कर दें, इसको साकिन कर दें। तो जब इदगाम हो जाएगा इन दोनों का, अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये तहरा ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए हमजा वसली शुरू में लेके आएंगे। शुरू में हमजा वसली लेके आ जाएगा, शुरू में हमजा वसली लेके आएंगे तो इत्तहरा बन जाएगा। ये शुरू में हमजा वसली है, ये दो ता थी, उनका इदगाम किया था ना, ये एक ता का दूसरी ता में इदगाम किया था, तो ये दो ता थी। इत्तहरा, इत्तहरा ये बन गया। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ। ये कलर तब्दील करके मैं ये, बल्कि मिठाता नहीं, टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, जब ये ततहरा है तो तफाउल की ता कलमे के मुकाबले में ता आ गई। क्या आ गई? ता आ गई। ठीक है, तो तब्दीली कहाँ पे आएगी? तफाउल के ता कलमे में। ता कलमे को हम ता के साथ बदल देंगे, ता को ता के साथ यहाँ पे बदल दिया तो क्या बन गया? ता तहरा, ता ता तहरा। ठीक है, अब इस ता का ता में इदगाम करेंगे। इदगाम के लिए पहले ता को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना होता है। जब इदगाम करेंगे तो अब ये इससे पढ़ा नहीं जाएगा, हमजा वसली शुरू में लाना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आगाज नहीं हो सकता। इस तरह अमर, अमर में हम हमजा वसली लेके आते हैं, क्योंकि पहला हर्फ साकिन होता है, तो मुशद्दद हर्फ में भी पहला हर्फ साकिन होता है, तो हमजा वसली शुरू में लेके आ गए तो क्या बन गया? इत्तहरा, इत्तहरा बन गया। ठीक है, अब किसी को यहाँ भी बयान किया, जैसे ततहरा में ता को ता से बदल के ता का ता में इदगाम कर दिया। ये क्या है? ता का ता में इदगाम कर दिया, ता का ता में इदगाम किया और शुरू में हमजा वसली ले आए तो इत्तहरा बन गया। इसी तरह दूसरा लफ्ज देखे, तसाकला। ये तसाकला तफाअला के वजन पर है। तसाकला ये क्या है? तफाअला के वजन पर है। तफाकला ये किसके वजन पर है? तफाअला के वजन पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कौन से हर्फ में ये सा आ गई। तफाउल के फा कलमे के मुकाबले में क्या आ गई? सा आ गई। ठीक है, ये सा ये हर्फ है, ये देख रहे हैं आप। तफाउल के फा कलमे के मुकाबले में जब सा आती है, तो अब ये तफाउल के ता कलमे को सा से बदल देते हैं। ये ता कलमा है, इसको सा से बदल दिया, क्या बन जाएगा? सा सा कला, सा सा कला। क्या बन गया? सा सा कला। ठीक है, तीसरा काम क्या करना होता है? ये दो एक जिन्स के हरूफ है, दो एक तरह के हर्फ हो तो उनका इदगाम होता है। तो सा का सा में इदगाम कर दिया, तो इदगाम के लिए जरूरी होता है कि पहला साकिन हो, और साकिन से चूंकि आगाज नहीं कर सकती, इब्तिदा नहीं कर सकते कलमे का, इसलिए हमजा वसली लेके आएंगे। हमजा वसली शुरू में लेके आ गया और ये सा का सा में इदगाम हो गया, तो क्या बन गया? इस सा कला, इस सा कला। तो ये हमारा कायदा जो है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि तफाउल और तफाउल के फा कलीमे के मुकाबले में
इन 12 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए, ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद ज़ौ तो ज़ा, तो तफाउल और तफाउल के ता कलिमे को उसी हर्फ से बदल देंगे और फिर उनका इदगाम करेंगे और शुरू में हमजा वसली लेके आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आसान सा कायदा था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ इस कायदे की समझ आ गई होगी, मुश्किल इसमें कोई नहीं है। ठीक है, आपके जो सवालात हैं इंशाल्लाह आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब दे दूंगा। ठीक है, ये कायदा क्लियर हो गया, आगे चलें। अगर ये कायदा क्लियर हो चुका हो, समझ आ गई होगी, तो फिर आगे चलते हैं। जल्दी रिप्लाई करते जाएं साथ साथ। ये तफाउल और तफाउल के हवाले से ये कायदा आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तफाउल और तफाउल के हवाले से ये कायदा आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अभी बाबी इफ्तिआल के कुछ कवाइद हैं। बाबी इफ्तिआल की तकरीबन 3 कवाइद है। ये समझने आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। ये तवज्जो के साथ आपने सुनना है। बाबी इफ्तिआल के कुछ कवाइद है, इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों की तवज्जो चाहिए। बाबी इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में देखिए, बाबी इफ्तिआल ये कायदा किससे ताल्लुक रखता होगा? बाबी इफ्तिआल से। बाबी इफ्तिआल की फा कलमे के मुकाबले में इफ्तिआल के किस कलमे के साथ ताल्लुक है? इसका फा कलमा। इस तरह तफाउल और तफाउल के फा कलमे में 12 हरूफ में से था, यहाँ पे इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में 4 हरूफ आ जाए, सौद ज़ौद ता ज़ा। वहाँ पे 12 हरूफ थे, यहाँ पे कितने हरूफ है? 4 हरूफ है, सौद ज़ौद ता और ज़ा। इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में सौद ज़ौद ता ज़ा में से कोई हर्फ आए तो यहाँ पे तब्दीली भी ता इफ्तिआल के ता कलमे में होगी। ठीक है, जिस तरह वहां पे तफाउल और तफाउल के ता कलमे में तब्दीली थी, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में जब साद ज़ा ता ज़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो ता इफ्तिआल को ता से बदलना जरूरी है। जब इन 4 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो ताए इफ्तिआल को यानी इफ्तिआल के ता कलमे को फा से बदलना जरूरी है। किससे बदलना जरूरी है? फा से। जैसे इस तबारा, इस तबारा से इस खबारा। यहाँ पे देखिए इस तबारा इफ्ताला, ये मैं जरा लिख के भी देता हूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये तबारा, इस तबारा इफ्ताला के वजन पर है। ठीक है, ये हमजा हमजा के मुकाबले में, साद जो है ये फा कलमे के मुकाबले में, इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में क्या आ गया? साद आ गया। ठीक है, 4 हरूफ में से। अब तब्दीली कहाँ पे आएगी? ता कलमे के मुकाबले में। ये ता कलमा है ना, ये ता कलमे को किससे बदल देंगे? ता से बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा? इस खबारा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इस खबारा तब्दील हो गया, इस खबारा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। दूसरी मिसाल इन्होंने दी है, इज तराबा, इज तराबा। यहाँ पे फा कलमे के मुकाबले में ज़ाद आ गया, फा कलमे के मुकाबले में क्या गया? ज़ाद आ गया, तो इसको ता से बदल दिया। ता को किससे बदल दिया? ता से बदल दिया, इज तराबा हो गया, इज तराबा। इसी तरह इत तलबा, ये फा कलमे के मुकाबले में ता आ गई, तो ये ता को किससे बदल दिया? ता के साथ बदल दिया, इत तलबा हो गया, इत तलबा। इसी तरह यहाँ पे मिसाल देखिए, इज तलमा, ये फा कलमे के मुकाबले में ज़ा आ गई, तो ताए इफ्तिआल को ता के साथ बदल दिया, तो क्या बन गया? इज तलमा। यहाँ तक तो कायदा हो गया मुकम्मल। अभी इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको बता दी कि अगर इफ्तिआल की फा कलमे के मुकाबले में साद ज़ाद ता ज़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इफ्तिआल के ता को, इफ्तिआल की ता को ता से बदलना जरूरी है। ठीक है,
अब आगे इसकी दूसरी शेख बता रहे हैं, फा से बदल तो दिया आपने, आगे मजीद बता रही हैं, फिर अगर फा कलमे के मुकाबले में ता हो, ठीक है। अब ये इनमें से हर हर्फ की अलग अलग वजाहत कर रहे हैं। एक तो अमूमी कायदा बता दिया, इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में इन 4 हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो इफ्तिआल के ता कलमे को ता के साथ बदल देते, ये बदलना जरूरी है, ये तो अमूमी बात होगी। अब फा कलमे के मुकाबले में अगर ता आई हो, यानी इन 4 में से फा आई हो, फिर अगर फा कलमे के मुकाबले में ता हो तो ता को ता में इदगाम करना जरूरी है, ता का ता में इदगाम करना जरूरी है, ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। जैसे इत तला से इत तला, असल में ये इत तला क्या था, इत तला था, इत तला था, ठीक है। ये फा कलमे के मुकाबले में ता आ गई, इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में क्या आ गई, ता आ गई, तो क्या कर दिया हमने, इफ्तिआल के ता कलमे को हमने किससे बदल दिया, ता के साथ, ठीक क्या बन गया, इत्तला बन गया, ठीक है। फिर ये कायदा जो है ये लागू होगा, अगर फा कलमे के मुकाबले में ता हो, कैमरे बंद रखें, कैमरे जो है बंद रखें, आपकी बड़ी मेहरबान, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर मसला बन जाता है, कैमरे ऑफ रखिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अगर फा कलमे के मुकाबले में ता हो तो ता का ता में इदगाम करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे फा कलमे के मुकाबले में क्या है, ता है, तो अब ता का ता में इदगाम करना जरूरी है, इत्तला हो जाएगा, इत्तला से क्या होगा, इत्तला हो गया, ठीक है, इत्तला हो गया। ये कायदा बहुत जरूरी है, इस कायदे को समझना बहुत जरूरी है। कुरान मजीद में बेशुमार मिसालें जो है ये बाब इफ्तिआल की इस्तेमाल हुई है, इस कायदे से उनका ताल्लुक है, तो ये इस कायदे को आप जरूर समझे, ठीक है। तो ये त्वा की कहानी खत्म हो गई, त्वा की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई यहाँ पे। अब बाकी साद ज़ाद ज़ा ये हरूफ रह गए, अगर इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो उसका क्या होगा, वो आगे बता रही है। त्वा की कहानी यहाँ तक क्या हो गई, खत्म हो गई। इसको ऊपर कर देते हैं ताकि जी त्वा की बात वहां तक मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब दूसरा हर्फ ले रही है, एक मिनट में जरा इसको इस तरह करो। अब दूसरा हर्फ जो है, अगर फा कलमे के मुकाबले में ज़ा हो, फा कलमे के मुकाबले में क्या हो, ज़ा हो, ये ता की बात तो मुकम्मल हो गई थी, अब ये ज़ा की बारी आ गई, ये ता मुकम्मल हो चुका है, 3 हर्फ बाकी थे, अब ये ज़ा को हम लेते हैं। अगर फा कलमे के मुकाबले में ज़ा हो तो उसमें 3 सूरतें जायज़ हैं, उसमें क्या है, 3 सूरतें जायज़ हैं। नंबर 1, इदगाम के बगैर पढ़ना, जैसे इज़ तलमा, देखिए इज़ तलमा असल में क्या था, मैं दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ ताकि इज़ तलमा असल में था ये इज़ तलमा, ये बार बार मैं वाज़ेह इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ये आप लोगों के जहन में बैठ जाए। ये इफ़ आला के वजन पे है, क्या है, इफ़ आला, इफ़ ताला। तो अब ये इफ्तिआल के फा कलमे के मुकाबले में क्या आ गया, ये इन 4 हरफों में से वा आ गया, ठीक है, साद ज़ाद ता में से क्या आ गया, वा आ गया। तो इफ्तिआल के ता कलमे को फा से बदलना जरूरी है, किससे बदलना जरूरी है, फा से बदलना जरूरी है, फा से बदलना जरूरी है। तो हमने क्या कर दिया, फा से बदल दिया, इज़ तलमा, ये आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा होगा, इज़ तलमा किससे बदल दिया, फा से बदल दिया। अब ये कायदा लागू होगा, ये वाला कायदा। अब ये वाला कायदा जो है ये हमने देखना है, अगर फा कलमे के मुकाबले में ज़ा हो तो उसमें 3 सूरत है। अब यहाँ पे फा कलमे के मुकाबले में आपको नजर आ रहा है ये ज़ा है, अब 3 सूरतें जायज़ है। पहली सूरत क्या है, इदगाम के बगैर पढ़ना, इज़ क़लमा, ये इज़ क़लमा, ठीक है, ये एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत ये है कि
फा को ज़ा से बदल के फा का ज़ा में इदगाम करना, ज़ा का ज़ा में इदगाम करना, फा को ज़ा से बदल के ज़ा का ज़ा में इदगाम करना। यानी ये जो यहाँ पे आपको फा नजर आ रही थी ये वाली, इसको ज़ा से बदल देंगे, ठीक है, ज़ा से बदल देंगे और ज़ा का ज़ा में इदगाम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इज़्ज़लमा, 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 ठीक है। ये दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत देखें, ज़ा को ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना। पहले यानी ता को ज़ा से बदल दिया था, अब ये तीसरी सूरत ये कि ज़ा को यानी फा कलमे के मुकाबले को ता से बदल के फा का ता में इदगाम करना, जैसे इत्तलमा। ये दूसरी और तीसरी सूरत एक दूसरे के बरअक्स है। दूसरी और तीसरी सूरत जो है ये दोनों एक दूसरे के बरअक्स है। ये मैं बरअक्स की निशान आपको बता रहा हूँ, ये एक दूसरे के क्या है, बरअक्स है। मैं जरा दोबारा यहाँ पे लिख के बताता हूँ ताकि ये आसानी से समझ आ जाए आपको। यार ये क्या लिखा जा रहा है, इज़ तलमा, ठीक है। ये दूसरा कायदा है, ये दूसरी सूरत जो है ये उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये तीसरी सूरत है, ये तीसरी सूरत की भी। अब करना क्या है देखिए, दूसरी सूरत ये दूसरी सूरत जो है ना, इसमें ता को ये इसको बदलना है। ता को किससे बदलना है, ज़ा के साथ बदलना है। ता को ज़ा से बदल देना है, क्या बन जाएगा, इज़्ज़लमा, इज़्ज़लमा, ठीक है। और यहाँ पे तीसरी सूरत जो है ये वाली सूरत, इसमें इसको ज़ा को ता से बदल देना है, तो क्या बन जाएगा, इत्तलमा, इत्तलमा, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़ा की बात थी ये भी मुकम्मल हो गई। ज़ा की बात जो है ये भी मुकम्मल हो चुकी है। ये इन दो हरफों की बात मुकम्मल हो गई। फ़ा कलमे के मुकाबले में अगर फ़ा आ जाए तो इदगाम करते हैं, ज़ा आ जाए उसमें ये तीन सूरतें जायज़ है। ये तीन सूरतें जायज़ है और ये तीनों सूरतें मैंने आपको बता दी। इदगाम के बगैर पढ़ना, फ़ा को ज़ा से बदल के ज़ा का ज़ा में इदगाम करना, या ज़ा को फ़ा से बदल के ता का ता में इदगाम करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब आगे मजीद आगे चलते हैं, इसकी अगली सूरत जो है, अगर ये अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में साद या ज़ाद हो, फ़ा कलमे के मुकाबले में साद या ज़ाद हो, उसमें दो सूरतें जायज़ है। उसमें क्या है, दो सूरतें पढ़ना जायज़ है। नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना, जैसे इस तबारा से, इस तबारा और इस तराबा। इस तबारा असल में क्या था, इस तबारा असल में था इस तराबा। ये क्या था, इस तराबा। ये फा इफ्तियाल के फा कलमे के मुकाबले में साद आ गया था, तो इफ्तियाल के ता कलमे को फा के साथ बदल दिया, ठीक है। फा के साथ बदल दिया तो ये बन गया इस तबारा, इस तबारा। तो इसको फा कलमे के मुकाबले में साद है, ये साद है, ठीक है, फा के मुकाबले में, तो इसको क्या कर दिया, बगैर इदगाम के पढ़ लिया। एक सूरत तो ये है। इसी तरह ये जो इज तराबा असल में था इज तराबा, इज तराबा, ता को फा से बदल दिया, इज तराबा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जाद है फा कलमे के मुकाबले में, इदगाम के बगैर पढ़ दिया, ये इदगाम के बगैर पढ़ दिया, एक सूरत। और दूसरी सूरत इसकी क्या है कि फा को साद से बदल दें,
ता को साद से बदल के साद को साद में इदगाम करना जरूरी है। जैसे इस सबरा, ये क्या था? इस तबरा था ना, इस तबरा बन गया था। ये जो ता है इसको किससे बदल दिया? साद के साथ। फिर साद का साथ में इदगाम कर दिया तो क्या बन गया? इस सबरा। क्या बन गया? इस सबरा। और इसी तरह जाद को भी जाद से बदल के जाद में इदगाम करना। जैसे इस तरबा है, यहाँ पे ता को जाद के साथ बदल दिया। ता को किसके साथ बदल दिया? जाद के साथ बदल दिया तो क्या बन गया? इस जराबा। इस जराबा, ठीक है। तो ये कायदा भी तकरीबन मुकम्मल हो गया। ये कायदा क्या हो गया? ये मुकम्मल हो गया कि अगर फा कलमे के मुकाबले में साद या जाद हो तो इसमें दो सूरतें पढ़ना जरूरी है। दो सूरतें क्या है? बदलना जरूर, दो सूरतें इख्तियार करना जायज़ है। इदगाम के बगैर पढ़ना, जैसे इस तरबा और इस तरबा, और ता को साद से बदल के साद का साद में इदगाम करना, और जाद को ता को जाद से बदल के जाद का जाद में इदगाम करना। इसी तरह ता को जा से बदल कर जाद से बदल कर जाद का जाद में इदगाम करना। जैसे इस ज़राबा, जैसे इस ज़राबा। यहां तक बात समझ आ गई? ये कायदा समझ में आ गया? जी जरा मुझे बता दें, कायदा समझ में आ गया? मुख्तसरन बताता हूँ। ये कायदे की दोबारा मैं वजाहत करता हूँ। इसको इत्तला और इस तबरा का कायदा पढ़ेंगे। इसको इत्तला और इस तबरा का कायदा पढ़ेंगे, ठीक है। एक इसमें अमूमी कायदा है और तीन जो है फिर आगे शाखें निकलती है। इसके तीन शाखें हैं। अमूमी कायदा क्या है? इफ्तिआल के फा के मुकाबले में साद ज़ाद ता ज़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इफ्तिआल के ता कलमे को ता से बदलना ज़रूरी है। ये क्या है? अमूमी कायदा है। ये कायदा अमूमी है। फिर आगे इसकी तीन शाखें हैं। इसके आगे क्या है? तीन शाखें। ये जो मैंने अभी तक अंडरलाइन किया ये तो करना ही है। इस तबरा से इस तबरा, इस तरबा से इस तरबा, इस तलबा से इस तलबा, ठीक है। ये तो करना ही है। ये तमाम में पहली शाख यहाँ से शुरू हो गई। अगर फा कलमे के मुकाबले में ता हो, यानी ये ता जो है ये आ जाए, ता आ जाए तो इसमें सिर्फ एक सूरत ही जायज़ है, ता का ता में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे इस तला से इत्तला, इत्तला से इत्तला, ठीक है। ये एक शाख तो मुकम्मल हो गई। दूसरी शाख यहाँ से शुरू हो गई। अगर फा कलमे के मुकाबले में वा हो तो इसमें तीन सूरतें जायज़ है। ये वा, ठीक है। ये दूसरा नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना, जैसे इज़ ज़लमा। नंबर दो, ता को ज़ा से बदल के ज़ा का ज़ा में इदगाम करना, जैसे इज़ ज़लमा। नंबर तीन, ज़ा को ता से बदल के ता का ता में इदगाम करना, जैसे इज़ तलमा। ये दूसरी सूरत इसकी मुकम्मल हो गई। तीसरी सूरत इस खुसूसी कायदा इसमें जो आएगा, अगर फा कलमे के मुकाबले में साद या जाद हो। ये जो शुरू में दो हर्फ है इनके बारे में एक ही कायदा, साद या जाद हो। अगर फा कलमे के मुकाबले में साद या जाद हो तो इसमें दो सूरतें जायज़ है। नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना। नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना, जैसे इस तबरा और इस तरबा। नंबर दो, ता को साद से बदल कर ता को साद से बदल कर साद का साद में इदगाम करना, ठीक है। ता को साद से बदल कर साद का साद में इदगाम करना, जैसे इस सबरा। इसी तरह ता को जाद से बदल कर जाद का जाद में इदगाम करना, जैसे इस ज़राबा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कायदा मुकम्मल हो गया। इस कायदे को बार बार
آپ دوبارہ دہرائیں اور مطالعہ کریں اس کا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن مجید میں مختلف اوقات میں استعمال ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس قاعدے کا نام جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں بس اشارہ کروں گا وہاں پہ پھر کہ یہاں پہ اطلاع اور استبارہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے. اطلاع اور استبارہ کا قاعدہ جو ہے جاری ہو گیا ہے. یہاں پہ از طربہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. یہ از طربہ جو حرف ہے، یہ دیکھ کے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. اصل میں تھا یہ شروع سے ہی پورا قاعدہ اس میں آ جائے گا. از از طربہ، یہ از طربہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں زود آ گیا. ٹھیک ہے، زود آ گیا، تو افتعال کے تا کلمے کو کس سے بدل دیا؟ فا کے ساتھ بدل دیا. یہ تو عمومی قاعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ عمومی قاعدہ ہے. کیا بن گیا؟ یہ میں لکھ رہا ہوں دوبارہ، از طربہ، از طربہ. ٹھیک ہے، دیکھیے فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ فا کلمے کے مقابلے میں زود ہے. فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ زود ہے. تو اس میں کتنی صورتیں جائز ہوتی ہے؟ دو صورتیں جائز ہوتی ہے. ایک صورت تو یہ کہ از طربہ ادغام کے بغیر پڑھے، اسی طرح جو بن گیا اسی طرح پڑھ لے. دوسری صورت یہ کہ یہ جو یہاں پہ ہے دوسری صورت، کہ طا کو ذات سے بدل کر ذات کا ذات میں ادغام کریں گے. یہ طا جو ہے یہ اس کو ذات سے بدل دیں اور ذات کا ذات میں ادغام کریں تو کیا بن جائے گا؟ از ضربہ، از ضربہ. اب اگر آپ کے پاس از ضربہ لفظ آ جائے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باب ضربہ یضرب سے ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی، یہ باب افتعال سے ہے. ٹھیک ہے، از ضربہ یہ ایسا قاعدہ ہے جو دوسرے انسان کو کنفیوزنگ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے آپ پوچھ کے کسی سے پریشان کر سکتے ہیں. پریشان کرنا نہیں ہے، شریعت نے منع کیا، لیکن یہ یعنی طالب علم کے ذہن کو پرکھنے کے لیے یہ قواعد آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ، امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا. افتعال کی دو قواعد اور ہے، دو قواعد اور ہے، ادہن اور ذکر کا قاعدہ، قسم کا قاعدہ. وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آئندہ ہفتے پڑھیں گے تاکہ یہ دو قاعدے جو ہے پہلے ہضم ہو جائے، پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے انہیں پڑھیں گے.